So, hi everyone. We are discussing about the chapter 8 of the indemnity and the guarantee. And under chapter 8, we have discussed about the rights of the surety and how the guarantee of the contract with the creditor that works. That also we have already discussed. So, okay. So, we have discussed under section 134 in the last class. The discharge of the surety by release or discharge of the principal debtor. That when a principal debtor is being released from a responsibility, along with the principal debtor, the surety also gets released from from the contract of the surety. That we have all discussed in the last class. Let's have a look upon this. The surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released, or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is discharge of the principal debtor. Okay, that means if there is the discharge of the principal debtor, then the surety is also released along with the principal debtor. Because whenever we are discussing about the contract of the indemnity and the guarantee, we know it well that when we are discussing about the contract of the indemnity or contract of the guarantee, what exactly happens there? For example, I have taken a debt amount of 5,000 rupees from you, okay? And what happens that when I have taken the debt of 5,000 rupees of you, then it's whose responsibility to pay back the debt? Yes, it is my responsibility to pay back the debt amount of 5,000 of the rupees. Yes or no? Okay. So, in case I am unable to do the repayment of the debt, in case the situation is happening where I am unable to repay the debt amount of the 5,000 of the rupees, in that specific circumstances, what will happen that in my place, or where I was supposed to pay the amount of 5,000 of the rupees, instead of me, I am appointing someone as my surety. Surety means the surety is giving the guarantee that in case I am unable to do the repayment of the 5,000 of the rupees, then in my place, the third person, that means the surety, is going to do the payment of the specific amount. Okay. So this is what we have discussed about the contract of the surety. Okay. So here, the person who has taken the debt, the person who has given the debt is called the creditor. Okay. The creditor means the person who has given the debt. Okay. And the person to whom the debt is given is called the principal debtor. That means the person who has taken the debt principally, that person is called the principal debtor, to whom the payment is given, or on whose behalf the surety is being done. For example, I have received a certain sum of specific goods from you, and in return I was supposed to pay you 5,000 of the rupees. Okay, so here I am I will be considered as the principal debtor over here, because what happened here that I have received the specific amount of the goods from you, and this is my responsibility to pay you back for the specific amount of the goods. Yes, what happened that I have taken the amount of the goods of the 5,000 of the rupees from you, and it is my responsibility, my duty to pay you back the specific amount of the goods. Yes, clear? So here, when we are talking about the discharge of the surety by the release or discharge of the principal debtor, that means the contract of the surety with the creditor to pay the specific amount is totally dependent upon the principal debtor. Principal debtor hereby is the medium link between the creditor and the surety. Okay, that means first of all, for the specific amount of the goods or the specific amount of the debt,
Who is the primary debtor over here? The principal debtor. He was supposed to do the repayment, but in case he is unable to do the repayment, then at that specific circumstances the surety is liable to do the payment. Okay, so here the surety will the surety and the creditor, they are standing at the different parts where the principal debtor is connecting both the surety and the creditor over here. Okay, so it is clearly visible that when at any space or when at any circumstances the principal debtor is unable to do the payment of something, or is for a specific amount of the goods, or a specific amount of the property, or a specific kind of the debt which he has taken, but he is unable to do the repayment. So in each specific place where he is unable to do the repayment, who is liable to do the payment? The surety. The surety is over here to liable to do the payment of the specific goods. Okay. So when the principal debtor is released from the responsibility, then isn't it that the surety will also be released from the responsibility? The answer is yes. I was supposed to pay you 5,000 of the rupees where I have appointed C as the surety. मैं आपको 5,000 रुपया देने वाली थी, बिकॉज मान लो कि मैं आपसे कुछ सामान लिया है, यू हैव सोल्ड मी समथिंग, आपने मुझे कुछ सामान मेरा घर पे डिलीवरी करवाया है, जिसके वजह से मैं आपको 5,000 रुपया देने का कंडीशन हो रखा है कि आई विल पे यू द अमाउंट ऑफ 5,000 ऑफ द रुपीज. दिस इज द डील बिटवीन यू एंड मी दैट आई एम गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ द 5K रुपीज. ओके, सो व्हाट हैपेंस बिफोर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ 5,000 ऑफ द रुपीज, 5,000 रुपया पेमेंट करने से पहले ही you told me that yes, here I don't trust you, that I think you should appoint a person as the surety. Okay, so यहाँ पे क्या होता है ना, आई एम अपॉइंटिंग समवन एज माई श्योरिटी. यहाँ पे आपने मेरे को सामान दिया है, उसके बदले में आपको 5,000 रुपीज देने वाली हूँ, बट यहाँ पे मैं सी को यहाँ पे एज माई श्योरिटी अपॉइंट करती हूँ एंड ये बोलती हूँ इन केस आई एम अनेबल टू डू द प्रीपेमेंट, अगर मैं ये पेमेंट नहीं कर सकती हूँ या फिर मेरे तरफ से पेमेंट करने में किसी भी तरह का गड़बड़ हो जाता है, देन इंस्टेड ऑफ मी, मेरे जगह कौन पेमेंट करेगा? सी जो है मेरा सिक्योरिटी, वो रिपेमेंट करेगा. ओके, बट मान लो बाद में जब मैं देखती हूँ अपने में मेरे को जो सामान डिलीवरी करवाया था वो सही सामान है ही नहीं, उसमें कुछ डिफॉल्ट निकला. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको सामान वापस कर दिया कि नहीं चलो मेरे को ये सामान नहीं चाहिए. तो यहाँ पे अगर मैंने आपको सामान वापस कर दिया तो सामान के बदले मैं आपको जो 5,000 रुपया देने वाली थी, am I liable to pay you the amount? The answer is no, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सामान वापस कर चुकी हूँ ना. अगर सामान वापस कर चुकी हूँ तो पैसा देने का क्या जरूरत? सो हियर आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ द रीपेमेंट. यहाँ पे मेरे को जो पेमेंट कर सॉरी ड्यूटी ऑफ द पेमेंट, मेरे को यहाँ पे जो पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था 5K का, वहां से मैं अपने आप को डिस्चार्ज कर देती हूँ क्योंकि मैंने सामान वापस कर दिया आपका. तो यहाँ पे द थर्ड पर्सन सी हु इज अपॉइंटेड एज द सिक्योरिटी, तो यहाँ पे अगर मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया गया है, देन इज सी इज लायबल टू डू द पेमेंट? द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो किसके लिए गारंटी देता है? प्रिंसिपल डेटर के लिए. अगर प्रिंसिपल डेटर को ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाए, देन श्योरिटी भी उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 134. दिस माइट बी डन इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपको 10,000 रुपया देना था प्रिंसिपल डेटर को, एंड द श्योरिटी द थर्ड पर्सन सी इज अपॉइंटेड एज द श्योरिटी. मान लो प्रिंसिपल डेटर, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में एक डील हो गया कि चलो यहाँ पे 5,000 रुपया देना था, बट 5,000 ना देके 3,000 रुपये में सॉर्ट आउट कर देते हैं.
both creditor and the principal debtor agreed with this, and the principal debtor paid the amount of 3,000 to the creditor, एंड क्रेडिटर ने बोला कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 3,000 पे, मतलब यहाँ पे जो भी हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था फॉर द पेमेंट ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स और द पेमेंट ऑफ द डेप्ट, उसी को मैं क्लोज कर देती हूँ. एंड यहाँ पे once the debt agreement or the goods delivered is closed over here, वहां पे एक बार ये जो डील है ना ये क्लोज हो जाता है with the amount of payment of the 3,000 of the rupees, जहाँ पे 5,000 का डेप्ट देना था, बट 3,000 में both the creditor and the principal debtor they mutually agreed कि हाँ ठीक है, हम दोनों मिलके 3,000 पे मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बस हो गया काम. तो यहाँ पे क्या होगा, once the matter is completed, once it is clearly visible कि हाँ ठीक है यहाँ पे हो गया, 3,000 पे ये जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल डेटर को जो लाइबिलिटी था टू डू द पेमेंट ऑफ द मनी, द क्रेडिटर डिस्चार्ज्ड द प्रिंसिपल डेटर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीपेमेंट. प्रिंसिपल डेटर ने बोला कि चलो ठीक है, मैं अब 3,000 पेमेंट कर दिया, एंड क्रेडिटर ने बोला कि ठीक है, आई एम डिस्चार्जिंग यू फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आप आजाद हो, आप मुझे कोई भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है. ओके, सो व्हेन दिस इज द circumstances, then the surety will also be discharged along with the principal debtor from the specific responsibility of the repayment. This is all about section 134 of the Indian Contract Act. Then comes section 135. It speaks about the discharge of the surety when creditor compounds with, gives time to, agrees not to sue the principal debtor. Okay. Let's read it out once. A contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor makes a composition with or promise to give time to or not to sue the principal debtor, discharges the surety unless the surety assents to such contract. Okay. अच्छा, ओके. सो सेक्शन 135 इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस सिचुएशन से श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है. पहला कंडीशन क्या बोला, इफ द क्रेडिटर एग्रीज टू सेटल फॉर लेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, see, first of all, the surety is bound by a certain specific agreement which has been primarily decided. That means अगर हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है that मैं आपको 10,000 रुपया देने वाली हूँ, I was supposed to pay you the amount of the 10,000 of the rupees, then and C is appointed as the surety over here, and यहाँ पे C को एज ए श्योरिटी अपॉइंट किया गया है. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब डील मेरे और आपके बीच में हो रहा है कि मैं आपको 10,000 रुपया देने वाली हूँ एंड सी इज प्रेजेंट एज द श्योरिटी, अगर मैं आपको वो पैसा नहीं दे पाती हूँ, देन ऑन बिहाफ ऑफ मी सी इज गोइंग टू डू द पेमेंट ऑफ 10,000 ऑफ द रुपीज. ओके, so here C is specified for the specific agreement of the payment of 10,000 of the rupees. Okay, समझ में आ गया. बट यहाँ पे मान लो देयर इज ए लिटिल चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कंडीशंस. ओके, क्या चेंज हुआ, जहां पे 10,000 देने वाली थी, 10,000 देने वाला था द प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर, यहाँ पे डील पे थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ, द अमाउंट विच वाज सपोज टू बी पेड, फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट वाज सपोज टू बी पेड वाज 10,000 ऑफ द रुपीज, उसी में अदला बदली आ गई. इसका मतलब क्या हुआ, जो 10,000 देने वाला था वो बढ़ के मान लो 12,000 हो गया, या फिर वो कम होके 7,000 हो गया. एंड द श्योरिटी हैज नो नॉलेज अबाउट द फैक्ट कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, कि जहाँ पे 10,000 का अमाउंट के लिए
श्योरिटी एज ए श्योरिटी उसको अपॉइंट किया गया था, वहां पे वो अमाउंट बढ़ के 12,000 रुपया हो गया है, या फिर वो अमाउंट कम होके 7,000 रुपया हो गया है, उसी के बारे में श्योरिटी को कुछ भी नहीं पता, एंड द श्योरिटी हैज नॉट गिवन द कंसेंट फॉर दैट। ओके, एंड हियर व्हेन दिस इज द सिचुएशन, जहाँ पे श्योरिटी अपना कंसेंट दिया ही नहीं फॉर द चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, then in that specific circumstances the surety can be discharged from his responsibility. Got it? अगर यहाँ पे according to section 135, if the creditor agrees to settle for less, यहाँ पे क्रेडिटर को 10,000 रुपया लेने वाला था, बट क्रेडिटर एग्री करता है कि नहीं चलो ठीक है मैं 7,000 पे मान जाता हूँ, मेरे को 7,000 भी चलेगा, आप मुझे 7,000 का पेमेंट कर दो। सो देयर इज ए चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही था उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस आ गया है, जिसके बारे में श्योरिटी को कोई भी अंदाजा नहीं है, एंड द श्योरिटी हैज नॉट एग्रीड on these terms and conditions of the lease payment. So here the surety can be discharged from his responsibility. ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरा, gives more time to the debtor and or promises not to sue the debtor. Okay. सेकेंड कंडीशन क्या हुआ? gives more time to the debtor. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में एक डील हुआ है कि यहाँ पे क्रेडिटर जो है वो प्रिंसिपल डेटर को कुछ सामान डिलीवरी करवाया है, या फिर कुछ अमाउंट का, मान लो द क्रेडिटर हैज गिवन द अमाउंट ऑफ 15,000 रुपीज एज डेट टू द प्रिंसिपल डेटर, उसको क्या दिया है? 15,000 रुपया दे दिया है। ओके, सो यहाँ पे श्योरिटी जो है उसके वो भी द थर्ड पर्सन सी इज अपॉइंटेड एज द श्योरिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, एंड प्रिंसिपल डेटर को कितना अमाउंट रिपेमेंट करना है? 15,000 रुपया। ओ मान लो कि देर इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर कि ये जो 15,000 रुपया है इसी को 4 महीने में या 5 महीने में रिपेमेंट किया जाएगा। ओके, इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 months द होल अमाउंट ऑफ 15,000 रुपीज विल बी पेड। ओके, सो एज द अमाउंट ऑफ द एज यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से लोन ले रखा है, तो यहाँ पे उसी को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द, मतलब डेप्ट है ना, तो डेप्ट का इंटरेस्ट लगता है। मान लो यहाँ पे 3,000 का इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे 15,000 के 15,000 लिया है प्रिंसिपल डेटर ने, उसी को पेमेंट करना पड़ेगा 18,000 रुपया इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 मंथ। ये डील हो गया किस किस के बीच में? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। प्रिंसिपल डेटर ने क्या बोला? ही अपॉइंटेड सी एज द श्योरिटी, शी को श्योरिटी के हिसाब से अपॉइंट किया और बोला कि ठीक है, अगर मैं ये 18,000 रुपया इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 मंथ्स नहीं दे पाती हूँ तो आप मेरा रीपेमेंट, आप मेरा पेमेंट कर देना। ओके, एंड श्योरिटी एग्रीज विद दिस। बट यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में थोड़ा समझौता हो गया है ड्यू टू द चेंज इन द सर्टन कॉन्ट्रैक्ट और सर्टन सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे क्या होता है? द क्रेडिटर एग्रीज टू गिव मोर टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। मोर टाइम मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे जो 5 महीने के अंदर जिसी का रीपेमेंट करना था वो 5 महीने बढ़ के मान लो अब 1 साल हो गया। Here, according to the modified new agreement between the creditor and the principal debtor और creditor के बीच में जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से ये जो 18,000 रुपया है ना, उसी को 5 महीने के अंदर नहीं, 1 साल के अंदर देने का है, 12 महीने के अंदर देने का है। सो देयर इज ए स्पेसिफिक लिटिल चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? यहाँ पे एग्रीमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस था वहां पे कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं? हाँ या ना बताओ? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जहाँ पे
ये जो अमाउंट ऑफ द 18,000 रुपया ये 5 महीने पे रिपेमेंट करने वाला था द प्रिंसिपल डेटर, वहां पे वो अमाउंट को वो 18 महीने में पेमेंट करेगा। एंड यहाँ पे द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज द श्योरिटी सी, द श्योरिटी हैज नॉट गिवन कंसेंट टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे श्योरिटी को इस बात का कोई पता नहीं है, एंड श्योरिटी हैज नॉट गिवन कॉन्ट्रैक्ट टू द कंसेंट टू द स्पेसिफिक एग्रीमेंट। श्योरिटी का यहाँ पे कोई कंसेंट ही नहीं है। So when there is the absence of the consent of the surety in the specific contract, and the creditor and the principal debtor with the consent of the both, the duration of the payment of the specific debt or the specific good is extended. The time period has been changed, it has been enlarged, it has been extended. So in that specific circumstances, the surety can be discharged from his obligation, because यहाँ पे जो 1 साल में 18,000 देने का नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है या पुराना कॉन्ट्रैक्ट पे जो चेंजेस किया गया है उसी के बारे में श्योरिटी उस नया कॉन्ट्रैक्ट पे, नया एग्रीमेंट पे उसी का खुद का कंसेंट नहीं दिया है। So hereby the surety is not liable to continue with his or her obligation. तीसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा? When the creditor promises not to sue the principal debtor. ओके, यहाँ पे कैसा होता है? मान लो the debtor has taken the benefit of the 15,000 rupees from the principal, from the creditor. तो क्रेडिटर ने यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर को कितना अमाउंट दिया? 15,000 रुपया दे दिया आफ्टर गिविंग द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द 15,000 रुपीज। मान लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्रीमेंट ये हो गया था कि 5 महीने के अंदर उसको उस सारी चीजों का रीपेमेंट करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ 15,000 of the rupees was supposed to paid to the creditor by the principal debtor, okay, in the duration of 5 months, okay. So यहाँ पे 5 महीने में जो पेमेंट होने वाला था, the specific amount was supposed to pay in the duration of 5 months, and according to the contract अगर 5 महीने के अंदर डेटर ने क्रेडिटर को अपना पेमेंट नहीं करता है, इफ द डेटर इज नॉट डूइंग द पेमेंट टू द क्रेडिटर, देन व्हाट विल हैपन? अगर डेटर ने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करता है इधर, देन व्हाट विल हैपन इन दैट सर्कमस्टांसेस? हियर द क्रेडिटर won't be liable to enlarge the time period, neither the creditor is liable to give any relaxation to the debtor. So hereby the creditor can sue the principal debtor for the specific amount of the payment. यहाँ पे अगर डेटर जो है वो क्रेडिटर से 15,000 रुपया लिया है तो उसी को 15,000 का रीपेमेंट किसी भी कंडीशन पे करना ही पड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना? So when the principal debtor is bound to do certain amount of the payment to the creditor in the specific duration of the time period, and यहाँ पे ऐसा होता है कि उस टाइम के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्रेडिटर का राइट है टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। वो प्रिंसिपल डेटर को जाके स्यू कर सकता है कि चलो मेरा 15,000 रुपया तुम निकालो। स्यू मीन्स फाइले केस, फाइले सूट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट उसी ने एक केस फाइल कर चुकी है। इसी केस में क्या मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल डेटर है वो मुझे 15,000 रुपया पहले से ही देने वाला था, बट अभी तक उसने पेमेंट दिया नहीं, जिसके वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, एंड आई एम सपोज टू गेट द अमाउंट
of the specific amount of the 15,000 of the rupees. यहाँ पे जब जाके कोर्ट में वो स्यू करता है टू द प्रिंसिपल डेटर, then what happens? So then right there over, the principal debtor is bound to do the payment to the creditor according to the order of the court. कोर्ट यहाँ पे क्या ऑर्डर देगा कि हाँ आपने यहाँ पे डेप्ट लिया ना, हाँ लिया, क्या डेप्ट का पेमेंट आपने किया है? डेटर बोलेगा कि नहीं मैं नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या ऑर्डर देगा कि आपको अभी के अभी उसी का सारा अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फाइन लगेगा. सो या फिर विल पनिश यू समथिंग अकॉर्डिंग टू द इम्प्रिजनमेंट और सर्टन अमाउंट ऑफ द फाइन. ओके, so the creditor has the right to sue the principal debtor for the non payment. ये हो गया हमारा पहले का कंडीशन. बट अगर क्रेडिटर यहाँ पे बोलता है कि मैं प्रिंसिपल डेटर को यहाँ पे स्यू नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, then what will happen? It might be with the consent of the creditor, or it might be due to certain performed obligation on behalf of the principal debtor. Okay, let me give you an example of this. For example, आपने मुझसे 15,000 रुपया का लोन लिया है. यू हैव टेकन द डेप्ट ऑफ 15,000 रुपीज फ्रॉम मी. ओके, तो आपने मुझसे कितना पैसा लिया है? 15,000 रुपया. तो आप मेरे को कितना रुपया पेमेंट करना बनता है आपका? 15,000 रुपीज यू आर सपोज टू पे मी. बट यहाँ पे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यू हैव नॉट पेड मी द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ 15,000 ऑफ द रुपीज, जो कि आपको 3 महीने के अंदर देना था. बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द 3 मंथ, 3 महीना कंप्लीट होने से पहले, देर इज ए सर्टन काइंड ऑफ एक्सीडेंट इज हैपनिंग टू यू. आपको मतलब देर इज सर्टन काइंड ऑफ द एक्सीडेंट इज हैपनिंग टू मी. मेरा मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मेरे को किसी भी तरह का मदद की जरूरत पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल आई नीड ब्लड, आई नीड द मेडिकल प्रिकॉशंस एंड यू आर हेल्पिंग मी इन दैट. ओके, बीइंग ए ह्यूमन, आपने आपने मेरे को हॉस्पिटल लिया, मेरे लिए मेडिसिन खरीदा, मेरा ट्रीटमेंट किया, मेरे को ब्लड दिया, मेरे लिए सारे ये जो ओब्लिगेशन है अपने अपने तरफ से कर दी. सो आई एम हैप्पी विथ योर सर्विस. मैं आपका, आपने मेरे मेरे ऊपर जो एहसान किया है, आपने मेरा जान बचाया है, आई एम हैप्पी विथ यू. तो मैंने आपको ये बोला कि चलो आप मुझसे जो 15,000 रुपया लिए थे ना उसी को रहने दो. आई एम नॉट गोइंग टू सीव यू फॉर द पेमेंट ऑफ द स्पेसिफिक अमाउंट. आप वो 15,000 रुपया मुझे ना ही दो तो ही अच्छा है. मैं उसी के लिए आपको कोर्ट रूम में सीव नहीं करूंगी. तो यहाँ पे क्या होता है? यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीपेमेंट. And once the principal debtor is discharged from the responsibility, the surety will also be discharged from the responsibility itself. So this is explained under section 135 that if the creditor agrees to settle for the less, gives more time to the debtor, or promises not to sue the debtor, then the surety is discharged unless they agree to such terms and conditions. Okay, ये हो गया आपका सेक्शन 135. ओके, देन आपका आता है सेक्शन 136 which speaks about the agreement with a third person to give time to the principal debtor. Okay, if the creditor gives times to the debtor through a contract with a third person, the surety is not discharged. Okay, okay, so यहाँ पे if for example यहाँ पे क्या होता है ना, there is a contract between the principal debtor and the creditor that the amount was supposed to be paid in the duration of 5 months. 5 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ता है. बट यहाँ पे the principal debtor is requesting the surety, requesting the creditor to extend the time. So creditor यहाँ पे क्या करता है? With a contract with the third person, there is another person other than the surety. उसी के साथ
क्रेडिटर ने एक कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करता है जिसके थ्रू ही इज गिविंग सम मोर टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर. सो here, even if the time period of the payment is extended, but it is not done directly through any modification in the current continuing contract. यहाँ पे प्योरिटी जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे प्रिंसिपल डेटर के साथ है उसी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है through an another contract with a third person, the time period is extended. So here, even if there is a change in the time period of the repayment, here as the previous contract is already existing, previous contract already exist कर रहा है यहाँ पर. That is why the surety is not discharged from her responsibility hereby. Okay. Then section 137, it speaks about the forbearance to sue. Okay. तो यहाँ पे section 137 speaks about the forbearance to sue. So what does it mean? It means a creditor's mere delay or decision not to sue the debtor does not discharge the surety unless the guarantee states otherwise. Okay. That means in previous section I was telling you that when there is the agreement between the creditor, there is the change in the contract, change in the nature of the contract in between the creditor and the principal debtor. That yes, the principal debtor hereby been promised by the creditor that yes, I am not going to sue you for the contract. Okay. If the creditor is doing that kind of the agreement or that kind of the contract for the sake of discharging the प्रिंसिपल डेटर, यहाँ पे ऐसा होता है कि क्रेडिटर ने यहाँ पे ये जो बोला कि मैं प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करूंगा फॉर द नॉन पेमेंट, ही इज डिस्चार्जिंग द प्रिंसिपल डेटर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट. उसने बोला कि आपको पेमेंट करने का जरूरत ही नहीं है. And if you are not paying, then I am not going to sue you. In that specific circumstances, the surety is discharged along with the principal debtor. ये हमने पढ़ के आया. बट यहाँ पे अंडर सेक्शन 137 पे ये बोलता है कि अगर क्रेडिटर ने ओनली स्यू करने से मना किया है बट he has not discharged the principal debtor from the payment responsibility, then यहाँ पे सियोरिटी को भी डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है. दैट मीन्स यहाँ पे आप मेरे को रिक्वेस्ट करते हो कि देखो मैं आपको 5 महीने में ये सारा पैसा वापस कर दूंगी, बट अगर मैं वापस नहीं कर पाई तो आप मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम देना, आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस मत फाइल करना. सो यहाँ पे क्रेडिटर ने उसी बात पे अपना कंसेंट देता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, आई एग्री विथ यू, मैं आपको, अगर आप मुझे 5 महीने में ये 15,000 रुपया वापस नहीं कर पाते हो देन आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर टाइम, मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा वक्त दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. बट एक बात है, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम दे रही हूँ, यू हैव टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आपको उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा. और अगर आप 5 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करते हो अकॉर्डिंग टू द करेंट कॉन्ट्रैक्ट, देन आई एम नॉट गोइंग टू sue यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके. सो यहाँ पे द क्रेडिटर हैज promised द प्रिंसिपल डेटर फॉर नॉट टू sue ओनली, बट यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर को उसी ने पेमेंट करने से नहीं रोका, पेमेंट देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां से डिस्चार्ज नहीं किया.
सो यहाँ पे हाउ द सिक्योरिटी कैन बी डिस्पोज्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी? द आंसर इज नो। प्रीवियसली हमने जहाँ पे पढ़ा कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को ये रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज करो, एंड क्रेडिटर बोलता है कि हाँ ठीक है, आप अगर पेमेंट नहीं करते हो तो आई एम नॉट गोइंग टू सी यू इन द कोर्ट एंड आई एम डिस्चार्जिंग यू फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अलोंग विद द प्रिंसिपल डेटर द श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को सिर्फ ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपका नाम पे कोर्ट ऑफ लॉ पे स्यू नहीं करूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेमेंट नहीं देना है, आपको पैसा देना पड़ेगा किसी भी हद पे। सो हियर दिस इज नॉट डिस्चार्जिंग द श्योरिटी फ्रॉम द रिपेमेंट, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। कोर्ट में केस नहीं जाएगा वो बात अलग है, बट पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। अगर प्रिंसिपल डेटर का पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रहता है तो श्योरिटी का भी उसी का श्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंटिन्यू करता है, उसी को मना नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? ये हो गया आपका सेक्शन 137। ओके, देन आपका आता है सेक्शन 138। व्हाट डज इट मीन? रिलीज ऑफ वन ऑफ द को श्योरिटी। ओके, releasing one of the co-surety does not discharge the other co-sureties or exempt the released surety from responsibility to the others. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहा है? For example, there is a contract where there is the presence of more than one surety. एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक नहीं, एक से ज्यादा श्योरिटी जुड़े हुए हैं। ओके, एंड the co-sureties are equally responsible to perform their part of the contract. Yes. So what is happening when the sureties are together responsible to do the performance of the contract? Uh, Due to certain circumstances, one of the surety is released from the performance. For example, in a contract, there is one principal debtor and there are three sureties. तीन श्योरिटी है यहाँ पे। अगर एक श्योरिटी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बाकी दो श्योरिटी according to the discharge of one surety, other two sureties are not discharged from their responsibility. Otherwise, they will continue their suretyship. एक सिक्योरिटी का डिस्चार्ज होने से, एक को सिक्योरिटी का डिस्चार्ज होने से बाकी को सिक्योरिटीज के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। दे आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? एंड द सिक्योरिटी हु इज released from or released or discharged, he is not he is he is not going to get the benefit of discharge his obligation towards other surety. उसी का प्रिंसिपल डेटर के प्रति अगर किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो उसी को नहीं निभाएगी, उसका जरूरत नहीं है। बट उसी का जो को सिक्योरिटीज है उनके प्रति इसका जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना ओब्लिगेशन से, उसी को निभाना ही पड़ेगा, वहां से छुटकारा नहीं मिल सकता है। गट इट? सो सेक्शन 138 बेसिकली ये बोलता है कि अगर देर आर मोर देन वन श्योरिटीज, देर आर 3-4 को श्योरिटीज और टू श्योरिटीज आर ऑल टुगेदर, सो रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी does not release the other surety or other sureties from the responsibility. And yes, if one surety or one of the co-surety is being released or discharged, he is discharged from his responsibility towards the principal debtor, but he is not discharged from the responsibility towards the other co-sureties. This is explained under section 138. Then comes section 139. Discharged
discharge due to the creditor action or omission. That means if the creditor acts against the surety's rights or omits actions they are duty bound to perform, leading to the surety losing a remedy against the debtor, the surety is discharged. Okay. Okay. So here, if the creditor is doing certain activity which is not permitted, that means, for example, the principal debtor over here is doing certain kind of the activity which is not accepted by the surety, which is not accepted, or he is breaching the terms and conditions towards the surety. क्रेडिटर का प्रिंसिपल डेटर के प्रति या श्योरिटी के प्रति जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द क्रेडिटर इज डूइंग सर्टन एक्ट और ओमिशन which is which is violating the rights or the terms and conditions towards the surety. So in that specific circumstances the surety can be discharged due to the act of the creditor or the omissions of the creditor when the remedy of the surety is being hampered. This is explained under section 139. So section 140, it speaks about the surety's rights after the payment. A surety who pays the debt gains all creditor right against the debtor. Okay. That means when a surety pays the debt on behalf of the debtor, principal debtor, he gains all creditor rights against the debtor. That means यहाँ पे there is a agreement. Okay. What is the agreement? I am supposed to pay you 15,000 of the rupees and C is appointed as my surety for the repayment. अगर मैं आपको 15,000 रुपया नहीं दे पाती हूँ तो on my behalf who will do the payment? C will do the payment. मान लो I was unable to do the payment. मैंने पैसा नहीं दे पाया तो मेरे बदले who is here responsible to do the payment? C. C यहाँ पे मेरे तरफ से पेमेंट कर देगी. So once C is doing the payment of the specific amount, C gains all the right of the creditor on behalf of the repayment. यहाँ पे पेमेंट किसको करना था? प्रिंसिपल डेटर को. 15,000 रुपया किसने लिया था? प्रिंसिपल डेटर ने लिया था. किससे? क्रेडिटर से. उसने पेमेंट किया क्या? नहीं किया. उसके बदले किसने किया? सिक्योरिटी ने किया. तो यहाँ पे सिक्योरिटी गेन्स ऑल द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर. क्रेडिटर को जैसे प्रिंसिपल डेटर से अपना पैसा वसूल करने का, अपना डेब्ट भरने का पूरा हक था, उसी तरह द श्योरिटी वंस डन द पेमेंट he or she gains all the right against the principal debtor as like the creditor. Got it? So this is about section 140. The more provisions we are going to discuss in the next class. From section 140 onwards, we will explain in details. So this is all for today, guys. We are ending the class over here. Thank you. Bye bye.